مارچ ترقی، امن اور خوشحالی کے عہد کی تجدید کا دن یوم پاکستان بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایوان صدر میں مسلح افواج کے پریڈ، تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی، فوجی بینڈ نے خوب دھنیں بکھیری، پاک فضائیہ کے شاہینوں کا شاندار فلائی پاسٹ، شیر دل فارمیشن نے فضا میں قومی پرچم کے رنگ بکھیرے، J-10C اور F-16 کی گھن گرج نے لہو گرما دیا۔ معراج طیارے کا ہائی اسپیڈ پاس کا شاندار مظاہرہ، تقریب میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی شرکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان، غیر ملکی سفراء کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری کو روایتی بگھی میں لایا گیا۔ دن کے آغاز پر وفاق میں 31 صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی، جوانوں کے نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی۔ بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا ہے۔ فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں، ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 5th جنریشن وارفیئر ایک اہم چیلنج ہے۔ نوجوان نسل نفرت اور مایوسی پھیلانے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج مل کر بھارتی عزائم ناکام بنائیں گے۔ کشمیری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ صدر کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کہا عالمی برادری فلسطین میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیویز کے خلاف T20 سیریز بچانے کا مشن، پاکستان اور نیوزی لینڈ چوتھے T20 میں مد مقابل۔ کیویز بیٹر کی جارحانہ بلے بازی، 2 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنا لیے۔ اوپنر ٹیم سٹیفرٹ 22 گیندوں پر 44 رنز بنا کر آؤٹ۔ مارک چیمپئن 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں کو حارث رؤف نے پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان کا وننگ کمبینیشن برقرار، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ نیوزی لینڈ کے اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں۔ قومی ٹیم نے میچ کے دوران گراؤنڈ میں روزہ بھی افطار کیا۔ 85ویں یوم پاکستان پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب، پاک فضائیہ کے دستے نے مزار پر ذمہ داری سنبھال لی۔ ایئر وائس مارشل اختر عمران سدوزئی کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ دوسری جانب یوم پاکستان پر مینار پاکستان جگمگا اٹھا۔ گریٹر اقبال پارک لاہور میں شاندار لائٹ شو دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔ دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کوئی ایک غلطی اور ہم سے ہو اور وہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہمیں غیر مستحکم کر سکے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کسی بھی ملک کی صرف افواج پاکستان یا افواج یا فورسز نہیں کرتی، بلکہ پوری قوم کو۔ ہمیں سب کو مل کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کو سب کو مل کے اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے اس ملک کا ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہ آئے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر کامران ٹیسوری نے کہا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے، نئے جذبے سے ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا اسلامی ممالک کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے، معاشی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یوم پاکستان پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا 1 سال میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، مہنگائی میں کمی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا،
हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, मुल्क को मजीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना है। वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, जमहूरियत और जमहूरी रिवायात को फरोग देकर हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। बानियान पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानी को खिराज तहसीन कहा। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूलों को याद रखना चाहिए। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज का दिन तकाजा करता है कि हम मुल्क की बका और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने कहा, यह दिन पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म को जाहिर करता है। हमारा वतन जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और अपनी सरहदों के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का प्याम्बर है, इस अमन का दिफा करते रहेंगे। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा भी जारी कर दिया। बलोचिस्तान में अन दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। नोशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, 4 अहलकार शहीद। हमले के वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थी। उधर करलात की तहसील मंगचर के इलाके कली मलंगजई में फायरिंग, 4 मजदूर जाम भाग हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंगचर के मुताबिक जाम भाग अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में फायरिंग वाक़यात की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों आम शहरियों को निशाना बनाना सफाकाना और काबिल मज़म्मत फेल है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूम मजदूरों को निशाना बनाना बहुत ही बुज़दिल अमल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह अफराद पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पुलिस और मजदूरों पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी खदशात। कोयटा से अंदरून मुल्क मुसाफिर बसें दिन के औकात में चलाने का फैसला। ज़िली हुकूमत के मुताबिक खुसूसी अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 12वें रोज भी मुअत्तल। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान की अफगानिस्तान में मुलाकातें। काबुल में अफगानी अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मीर खान मतकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अफगान कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात पर बातचीत, राहदारी और राबते के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। कौम 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाने पर आपकी मशकूर है। वज़ीर आज़म की कौमी ख़जाने की रिकवरी पर वज़रा और अफसरों की तारीफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR की कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहे अमल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का 4 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। वज़ीर आज़म ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम होगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। अप्रैल 2025 से विद होल्डिंग टैक्स में 2% कम करके जुज़वी रियायत दी जाएगी। फरोख्त कुनंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर FED कम करने पर भी इत्तेफाक। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने पर मुत्तफिक। बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम अरब खान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म करके मुकर किया। कहा, कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता,
पुलिस ने मेरे ऊपर काला जादू करवाया है। जिस गाड़ी में मुस्तफ़ा था उसके अगले हिस्से को आग लगाई। मुस्तफ़ा के नसीब में मरना लिखा था। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें शरीक हूँ। कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस सामने आया। 29 साला मरीज जिला मलीर कराची का रिहायशी है। मुतासरा शख्स में 15 मार्च को मंकी पॉक्स की इलामात जाहिर हुई। मरीज को सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। यौम पाकिस्तान मुबारक। अमरीकी सैनिटर क्रिस वॉन होलन का पाकिस्तानी कौम के लिए तहनीती पैगाम। वीडियो पैगाम में कहा, जिंदगी भर पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्म जोशी देखी। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने का ख्वाह हूँ। सऊदी शहर जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट में यौम पाकिस्तान तकरीब। कौंसल जनरल ने परचम कुशाई की, कौमी तराना बजाया गया। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। उधर बांग्लादेश दारुल हुकूमत ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी तकरीब। हाई कमिश्नर सईद अहमद मारूफ ने कौमी परचम लहराया। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़े गए। 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में करारदाद पेश की गई। यहीं 23 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ। इसी मकाम पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कुर्सी सदारत के लिए रखी गई। मीनार पाकिस्तान उस अजीम दिन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया है। करारदाद की अहमियत से मुतालिक होगी खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। गाजा में इसराइली जारी ताज़ा हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी नसीरात कैंपों समेत गजा के 200 मकामात पर बमबारी। खान यूनिस में हमास रहनुमा सलाल बर्दवेल अहलिया समेत शहीद। सेहूनी फौज ने हलाले अहमर की एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे में छापे, 34 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज ने लिबनान में हमले शुरू कर दिए। जनूबी लिबनान में जारहियत में 7 अफराद शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। यमन के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी हमले जारी। उधर तल अबीब में फिर शहरियों की बड़ी तादाद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। सड़कों, यूनिवर्सिटीज, कैंपसेस और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 300 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार मेयर इस्तांबुल अदालत पेश। अकरम ओगलू ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत के बाहर भी हजारों अफराद का एहतजाज। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की बिजली क्यों बंद हुई? वज़ीर तवानाई एड मिलीबैंड ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट 6 हफ्ते में आने का इम्कान। बिजली बंदिश के बायस जुमे को 1400 परवाजें मुतासिर हुई थी। लंदन के 16,000 से ज़ायद घर भी बिजली से महरूम हो गए थे। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत बेहतर। आज अस्पताल से छुट्टी मिलने का इम्कान। वेटिकन हुकाम के मुताबिक पोप ने नमूनिया से निजात हासिल कर लिया। उन्हें 2 माह आराम की जरूरत होगी। वनडे सीरीज के लिए 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिब जावेद भी स्क्वाड में शामिल। दोनों ममालिक के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएंगी। पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाए। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 21वें रोजे की इफ्तार। परेशानियों में घिरे जरूरतमंदों की दिल खोलकर इमदाद। अदाकार अहमद हसन बने प्यारा मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।